अच्छी से अच्छी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। में थैंक यू कहते हैं हमारे प्रिंसिपल सर को और जो हमारा अपना स्टाफ, उसके लिए हम प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज़ करते हैं उधर ही लोकल लेवल पे अपने स्टाफ। रेडियो और प्रिंसिपल प्लस जो है हम मिल के इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। Treading the challenging terrain of the Karna valleys, one arrives at one of the remotest higher secondary schools in India, Boys Higher Secondary School Titwal. This is not just a school but a beacon of inspiration and resilience. As you step into the school premises, a serene environment greets you, captivating every visitor with its tranquil charm. Every morning, the school echoes with patriotism as students recite the national anthem. Their voices mingling with the solemn reverberations of the nearby line of control. This daily ritual instills a profound sense of pride and discipline among the آج ہمارے students. ساتھ ہائر سیکنڈری اسکول ٹیٹوال کے پرنسپل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پرنسپل صاحب سے ہماری گزارش رہے گی کہ آپ اپنے بارے میں اپنے اسکول کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتا دیجیے ہمارے ویورز کو سر. Sir, I am Abdur Shitar from Kupara and I have joined this institution on 11th of February 2020. تو جب میں نے پہلی بار یہاں جوائن کیا تو میرا جو پرائمری فوکس پرائیورٹی تھی وہ ایکیڈمکس. Under the visionary leadership of its principal, Mr. Abdul Rashid Dar, the school has achieved remarkable milestones. پڑھا رہے تھے ٹریڈیشنل اور وہ راٹ لرننگ چل رہی تھی. تو اس راٹ لرننگ کو میں نے کیونکہ میں ڈائٹ سے ہی آیا تھا تو میں نے اس Through his innovative pedagogical leadership, the institution has excelled not only in academics but also in co-curricular activities, setting a standard of excellence for others to emulate. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ ٹیچنگ میتھڈس اڈاپٹ کرو, ڈیولپ دا کریٹیکل تھنکنگ اور انوویٹو تھنکنگ. ہاں زڈیو صاحب سے ہماری بات ہو گئی اس سے پہلے جو زڈیو چھمکوٹ ہے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ انرولمنٹ ڈرائیو میں آپ کا خاصا رول رہا ہاں ہے اس پورے ایریا میں. تو گیون دیٹ دس ایریا از ویری ہارڈ. اگر آپ اس ایریا کی جو ٹوپوگرافی دیکھو گے بہت ہی ٹف ٹرین ہے. یہاں بچے سیماری سے آتے ہیں جن کو 2 گھنٹے یہاں آنے میں لگتے ہیں, بیاری سے بچے آتے ہیں جن کو یہاں 2 گھنٹے لگتے ہیں, مورچنا سے بچے آتے ہیں جن کو یہاں 2 گھنٹے آنے میں لگتے ہیں. پھر بھی ہم نے اس کمپلیکس میں پورے کلسٹر میں ہم نے ٹیچرس کے ساتھ مل کر وہ انرولمنٹ ڈرائیو چلایا اور ہم نے پورے جو یہاں کے اسکول تھے, چھوٹے جو پرائمری اسکول تھے یا مڈل اسکول یا اپنی ہائر سیکنڈری تھی, اس میں وہ انرولمنٹ بڑھایا. اچھا پوری کوشش کی ہم نے. دور دراز سے آپ کے بچے آتے ہیں, روڈز کا بھی بڑا ہی ایشو ہے یہاں پہ. یہاں پہ آ کے ان کو فیسلٹیز دینا, انٹرنیٹ فیسلٹی کیا یہاں پہ اویلیبل ہے گیون دیٹ این ای پی آج کل کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا انٹیگریشن ہونا چاہیے, ٹیکنالوجی کا یوز ہونا چاہیے ہر کلاس روم میں. تو انٹرنیٹ کی فیسلٹی یہاں اویلیبل ہے تو اگر ہے تو کیسے کیا آپ نے؟ میں آپ کو بتاؤں گا جی. اگر آپ دیکھیں یہ آپ نے خود دیکھا کہ یہ جو گاؤں ہے ٹیٹوال گاؤں, یہ لائن آف کنٹرول ہے اور یہ ٹرین بھی جو ہے وہ ٹف ٹرین ہے. لیکن پھر بھی ہم نے بہت کوشش کی کہ یہاں جو فیسلٹیز جو ہیں کہ ان کی فیسلٹیز کو وہ امپرومنٹ کے لیے میں نے بہت ساری کوشش کی. ہمارے پاس آئی سی ٹی لیب ہے, اس کو میں نے امپروو کیا. اب ہمارے ہر کوئی جو ہے ٹیکنالوجی انٹیگریشن جو این ای پی میں ہے اس پہ میں نے وہ زور دیا. تو ہمارا ہر کوئی کلاس ایک کلاس ہر ٹیچر اس آئی سی ٹی لیب میں. ہاں ہمارے پاس وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ہمارے پاس انٹرنیٹ
फैसिलिटी भी है अच्छा। और हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट फैसिलिटी भी है। और बच्चों के क्लास जो है, हर क्लास एक एक क्लास हम देते हैं उधर ICT लैब है, और वोकेशनल लैब भी है हमारे पास। और जो हमारे वोकेशनल टीचर है वो भी उधर ही IT, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेड है वो IT का ट्रेड है, तो वो क्लासेस भी उधर ही ICT लैब है। प्रैक्टिकल्स जो साइंस के पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स हैं उनका प्रैक्टिकल्स का इशू रहता है, तो यहाँ स्पेस भी आपकी बहुत कम हाँ, है। ये तो लैब में जो मटेरियल होना चाहिए वो मैंने पूरा रखा। मैंने खुद परचेजिंग की आउट ऑफ लोकल फंड्स, और जो भी चाहिए बच्चों को एट +2 लेवल या एट सेकेंडरी लेवल, जो भी इनको जो इक्विपमेंट चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो मैंने पूरा रखा है। NEP का जोर है कि जो टीचर्स हैं वो कैपेसिटी बिल्ड करते रहे, उनकी ट्रेनिंग रेगुलरली होती रहे। तो सिंस ये जो एरिया है दूर दराज एरिया है, डाइट में पहुंचना यहाँ के टीचर्स के लिए शायद दुश्वार होगा, क्या इसका आपने कुछ स्टेप ले लिया? देखिए, मैंने CO साहब यहाँ आया था, मैंने उससे भी बात की, उस वक्त उसको डाइट का एडिशनल चार्ज भी था। तो मैंने सबसे जो मैंने देखा इस पूरे जो कम्प्लेक्स जो क्लस्टर में घूमा हूँ, तो मुझे लगा जो है वो लर्निंग क्राइसिस है टीचर, क्योंकि यहाँ जो टीचर्स हैं ना, क्योंकि ये RT ज़्यादा मैक्सिमम टीचर जो है RT, तो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ये होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो मैंने CO साहब से बात की कि आप एक काम करिए, क्योंकि जब वो विंटर में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं तो वो कुपवाड़ा, ये यहाँ तो रास्ता बंद होता है, तो ये कुपवाड़ा जा नहीं सकते हैं। और इस वजह से मैंने CO साहब से बात की कि आप एक रिसोर्स बैंक बनाइए पूरा करना वैली के लिए। के बारे में हमने ट्रेनिंग, मैंने PLC के पर बल्कि वर्कशॉप भी किए, इंस्पायर जो भी मतलब इनिशिएटिव्स हैं, इंस्पायर अवार्ड हैं, बाकी वो ये विस्टा है, उन चीज़ों के बारे में मैंने खुद यहाँ टीचर्स के साथ अपने इस कम्युनिटी हॉल में मैंने टीचर्स को बुलाया, बात की अच्छा, उस हाँ, हवाले से लोकल आप लेवल पे। regularly हाँ, करते मैं तो रहते करता हो। रहता हूँ, तो- जो कि मेरा है इधर ही लोकल लेवल पे अपने स्टाफ के लिए। तो फ़र्क आया कुछ टीचर्स में, कुछ इनकी परफॉर्मेंस में आपको लगा एकेडमिकली रिजल्ट्स में कुछ बेहतरी हाँ आई? हाँ हाँ, इस साल जो अगर देखिए कि हमारे रिज़ल्ट सबसे क्योंकि अच्छे रहे, हमारे 91% 12th में रिज़ल्ट रहा, हमारा मैट्रिक में जो है 91% रिज़ल्ट। लेवल पे देखेंगे, चूँकि लोकल ही स्टाफ है, तो सेकेंडरी लेवल पे तो हमें ठीक ही स्टाफ है, सफिशेंट है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एट +2 लेवल तो हमें स्टाफ की बहुत ही ज़्यादा डिफिशेंसी है। ओनली 2 लेक्चरर्स हैं, सिर्फ 2 एनवायरमेंटल साइंस और बॉटनी के लेक्चरर हैं। बाकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, उनमें हमें कोई यानी 14 पोस्ट हमारी लेक्चरर्स की हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही लेक्चरर्स हैं, तो इसको मैनेज करना पड़ता है। ये जो है क्लासेस के लिए हम ICT ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं, हमारे पास वो है, वो स्मार्ट बोर्ड है, हम स्मार्ट क्लासेस करते हैं, उसमें हम स्वयं का इस्तेमाल करते हैं, और जो यह दीक्षा का है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसका हमारे जो है वो ये इंटरनेट है या ICT लैब है, उसका हम पूरा फ़ायदा उठाते हैं ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, तो उस हिसाब से बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अप्रिसिएशन के लायक है ये स्कूल भी और आपकी मेहनत भी। Through his innovative pedagogical leadership, the institution has excelled not only in academics but also in co-curricular activities, setting a standard of excellence for others to emulate. बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ हैं, और प्रिंसिपल साहब और मसूद सर की वजह से ये नई बिल्डिंग बन रही है, और यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं मगर जगह बहुत कम है, इसलिए नई बिल्डिंग बन रही है। सर यहाँ पे जगह की बहुत दिक्कत थी, लेकिन फिर भी मैं थैंक यू कहते हैं हमारे प्रिंसिपल सर को और मसूद सर को, उन्होंने फिर भी इतना किया हमारे लिए, बिल्डिंग तैयार कराई हमारे लिए उन्होंने 2-3 महीने में। वंडरफुल। जी, यहाँ पर स्कूल भी ठीक है और यहाँ पर पूरी फैकल्टी है, सब टीचर्स ठीक से पढ़ाते हैं, मगर हमें यहाँ पर थोड़ी क्लास की दिक्कत है क्योंकि बिल्डिंग बन रही है। इन्होंने बहुत फ़ायदा हमें पहुँचा इन शेड्स में, जब भी यहाँ पर बारिश होती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो हम यहाँ में क्लास नहीं होती तो हम यहाँ बैठते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स यहाँ वॉलीबॉल भी खेला जाता है, यहाँ पर फुटबॉल भी खेला जाता है, यहाँ क्रिकेट भी खेलते हैं, यहाँ बैडमिंटन, यहाँ सब स्पोर्ट्स की फैकल्टी अच्छी है। स्पोर्ट्स में हमें यहाँ पर टीचर में स्पोर्ट टीचर वो सब टीचर। जो यह टीटवाल हायर सेकेंडरी है, बॉर्डर की हायर सेकेंडरी 0 लाइन पे है ये। तो यहाँ पे पहले ये हायर सेकेंडरी जो थी एकेडमिक्स 3 शेड्यूल में होता था, जो NGOs ने बनाया था, जलजले में यहाँ बिल्डिंग गिरी थी। फिर पिछले 1 साल से यहाँ एक बिल्डिंग आई है आर्ट एंड क्राफ्ट की, 4 रूम है, डबल स्टोरी, उसका काम चल रहा है, और भी बिल्डिंगें आ रही है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फिर भी हम जितना हमारे पास रिसोर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर का हम उसको मैनेज करके बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हमें सब्जेक्ट गैप्स हैं उनको हमने
स्पेसिफिक टीचर्स ला के प्रिंसिपल साहब ने मेहनत की, उसमें उनको लाया, और भी जो ज़रूरत थी, चाहे लाइब्रेरी की बुक्स की बात थी, उनको भी सेल्फ सेलेक्टेड लाया, लैब के बारे में जो इक्विपमेंट्स थे उनको लाया। हमारी यही कोशिश है हर एक की कि यहाँ की जो एजुकेशन है वो अच्छी से अच्छी बने, ताकि यहाँ के जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम मिले, आगे जाके वो फ्यूचर के लिए अच्छा सोसाइटी के लिए प्रूव हो जाए। हम हायर सेकेंडरी स्कूल टीटवाल में हैं, हमारे साथ हैं जडियो करना। जडियो साहब, आप बताइए इस स्कूल के बारे में, क्या कर रहा है यहाँ पे, सिंस दिस इज इन द बॉर्डर लाइन टीटवाल। हायर सेकेंडरी स्कूल टीटवाल जो है, इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में आप वो क्या कहें? हाँ, एकेडमिक परफॉर्मेंस देखिए, दूर दराज इलाके में जो मजबूरियाँ होती हैं, जो डिफ़िकल्टीज होती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, कमर बांध के काम करना है। इंशाल्लाह हम वसूख से ये कह सकते हैं कि हमारा एकेडमिक्स जो है अच्छा है इंशाल्लाह। ये जब कभी भी कोई वहाँ से काम आता है तो हमें कहा जाता है, पूछा जाता है कि ये कहाँ बने, तो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जो है इन्होंने देखा कि अब हमारी जो जगह है यही मुनासिब रहेगी, क्योंकि सामने तैनात है तो ग्राउंड ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए इनकी मेहनत का अवश्य से ये वहाँ बन रही है। और इंशाल्लाह ये मैं अपने टीचर्स को ये कहूँगा कि मेहनत लगन से काम करें, कॉम्पिटेंसी से काम करें। वो काम कर रहे हैं अच्छी तरह, लेकिन वो जो है टेक्निक्स को उसका इस्तेमाल करके वो इसको करें। और बच्चों से मैं ये कहूँगा कि मेहनत लगन से काम करें, और अगर अच्छी मेहनत से पढ़ाई करेंगे वो दिन दूर नहीं कि इनका मुस्तकबिल जो है वो अच्छा होगा। शुक्रिया जडियो साहब, आपने हमारे साथ बात की, थैंक यू वेरी मच, आपका सपोर्ट हमें मिला। Indeed, Boys Higher Secondary School Teetwal stands as a testament to the power of dedication and visionary leadership, shaping a brighter future for its students and the community it serves.